एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लेफ्ट हैंड साइड है, बोलो क्या है? कॉट 4x into sin 5x plus sin 3x। कुछ राइट हैंड साइड में वो बाद में देखते हैं, ठीक है? अभी यहां ध्यान रखो, cot 4x इसको भी ऐसे रखो। कौन से आइडेंटिटी इस्तेमाल करोगे? sin a plus sin b। sin a plus sin b is what? Twice sin of their sum, है ना, divided by 2, and there is cos of their subtraction, their difference divided by 2. Okay, it's cot of 4x, it's twice sin of 5 plus 3 हो गया 8, 8 by 2 हो गया 4x, and cos of 5 minus 3 is 2, 2 by 2 is 1, मतलब cos x। cot 4x किसके बराबर है? cos 4x divided by sin 4x, साथ में क्या है? twice sin 4x and cos x, ये कैंसिल हो गए, so it's total it's twice cos 4x and cos x। ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब बोलोगे आप राइट हैंड साइड तो नहीं आ गई। आपने 10th में एक क्वेश्चन पढ़ा था, वहां पे लिखा था मतलब सिंपलीफाई लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड सेपरेटली, क्योंकि लेफ्ट हैंड को सिंपलीफाई करने के बाद राइट हैंड नहीं मिला यहां से, मात्र आंसर डायरेक्टली। तो अब हम इस बार राइट हैंड अलग से लेंगे, अब लेंगे राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड को सिंपलीफाई करने के बाद आपको राइट हैंड नहीं मिला यहां, ठीक? अब क्या करेंगे? राइट हैंड को अलग से सिंपलीफाई करेंगे। What's right hand? Cot x. It is cot x and Sin 5x sin 5x minus sin 3x. minus sin 3x. It is cot x sin a minus sin b. Sin a minus sin b is twice cos of their sum divided by 2 and sin of their difference divided by 2. It's cot of x twice cos of 4x and sin of x क्यों? 5 minus 3 is 2, 2 by 2 कैंसिल, तो x बचेगा। और cot किसके बराबर है? cos by sin and twice cos of 4x and sin of x cancel, so total right hand side is equal to twice cos of 4x and cos of x। ये है राइट हैंड साइड। अब चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड twice cos 4x cos x, राइट हैंड साइड twice cos 4x cos x, बराबर है ना? सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया 15। अभी क्या है? 16, 17, 18 और 19 एक जैसे क्वेश्चन है। एक मैं दिखाऊंगा, कोई सा भी रैंडमली। हाँ, कौन सा दिखाओ? 19 ही दिखा। Question number 19. What's question number 19? Left hand side. Sin x plus 3x. क्या बोल रहे हो? Sin 3x. Sin x Right. Sin x plus sin 3x. Question number 19. It's left hand side. What's left hand side? Sin x plus sin 3x. पहले शुरू मालूम था क्या? कौन है? Sin x plus Sin 3x divided by cos x divided by cos x plus cos 3x. plus cos 3x। ये है लेफ्ट हैंड साइड। अभी आइडेंटिटीज इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन सी आइडेंटिटी? sin a plus sin b। कौन सी आइडेंटिटी? sin a plus sin b किसके बराबर है? twice sin of their sum divided by 2 cos of their difference divided by 2, और है cos a plus cos b, है ना? It is minus twice cos of their sum divided by 2 cos of their difference। नहीं समझे? ठीक है, करो इस्तेमाल आइडेंटिटी। Therefore left hand side is equal to sin a sin b, it is twice sin of
देयर सम लिखेंगे पहले x plus 3x divided by 2 its cos of their difference x minus 3x divided by 2 divided by cos of a plus cos of b it's twice cos of their sum divided by 2 and cos of their difference divided by 2. You got it? Yes, sir. समझ आया? Yes, sir. 2 and 2 cancel, so it's remaining sin of x plus 3x is how much? 4x. 4x by 2 is 2x. So it's sin of 2x. Second, cos of x minus 3x is minus 2x. X minus 3x is minus 2x by 2 is minus x. It's cos of minus x. लिखते हैं पहले. And it's cos of ये भी है x plus 3x 2x by 2 it's 2x. And ये भी है cos of minus x. अब एब्जॉर्ब करो या ना करो ये तो वैसे भी कैंसिल ही हो जाएंगे. ठीक है? So it's total sin by cos is tan 2x. यही है right hand side. So left hand side is equal to ये है right hand side. तो होमवर्क कौन कौन है? 16, 17, 18 ये सारे एक जैसे क्वेश्चंस हैं तो ये होमवर्क है आपके. Now it's question number 20. Question number 20 is what? Left hand side Sin of x is equal sin of x minus sin of 3x. x minus Sin of 3x sin of 3x divided by sin square x minus cos square x. sin square x minus Cos square x. cos square X. सुनो बेटा पहले क्या करना है? पहले क्या करना है? sin x minus sin 3x मतलब sin a minus sin b sin a minus sin b इसके बराबर है twice. पहले cos है क्योंकि बीच में माइनस है ना पहले cos होता है. Their sum divided by 2 and it is sin of a minus b divided by 2. और एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी. देखो हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था cos square a plus sin square a. कब पढ़ा था? 10th में. फिर 11th में भी पढ़ा. cos square a plus sin square a किसके बराबर है? 1 के बराबर. क्या? cos square a plus sin square a is 1. और हमने पढ़ा था cos square a minus sin square a. अगर प्लस है तो 1 है, अगर माइनस है तो cos square a minus sin square a. याद करो क्या पढ़ा? cos square a minus sin square a is sin 2a. याद है? sin 2a क्या पढ़ा था? sin 2a यहां ध्यान रखो. sin 2a is cos square a minus sin square a. इसकी 4 आइडेंटिटीज है. sin 2a की 2 है सॉरी. नहीं ये हमने गलत पढ़ा. cos 2a हमने पढ़ा था cos square a plus sin square a किसके बराबर है? 1. cos square a minus sin square a किसके बराबर है? cos 2a. याद है cos 2a की कितनी आइडेंटिटीज है? 4. एक पढ़ा है cos 2a is equal to cos square a minus sin square a. दूसरा पढ़ा है twice cos square a minus 1. तीसरा पढ़ा है 1 minus twice sin square a. और चौथा पढ़ा है 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square. नहीं समझ. तो ये भी एक आइडेंटिटी है cos 2a. It's cos square a not plus sin square it's minus sin square. लेकिन हमारे पास क्या है? sin square x minus cos square x. अगर ये होता cos square x minus sin square x तो हमारा काम बन जाता. हम ऐसा ही करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड is equal to sin a minus sin b. It is twice sin a minus sin b is twice cos of their sum divided by 2 and sin of their difference divided by 2. पहला ठीक है? डिवाइडेड बाय. अभी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी. पहले इनको इंटरचेंज करेंगे. क्या करेंगे? इंटरचेंज करके इट इज माइनस टाइम्स cos square x माइनस sin square x. समझ आया नहीं आया? यहां पे sin a माइनस sin b की आइडेंटिटी इस्तेमाल और डिनोमिनेटर के अंदर ये है sin square x माइनस cos square x. अगर ये cos square x माइनस sin square x है तो ये आइडेंटिटी है cos 2a. ठीक, इसीलिए इसमें से माइनस कॉमन निकाला. इनको इंटरचेंज कर दिया. अगर वापस माइनस मल्टीपल करोगे माइनस और माइनस प्लस sin square माइनस प्लस माइनस cos square. You got it? It's
twice cos of how much? 4 by 2 is 2. It's cos of 2x. Sine of, what is this? Minus 2 by 2 is minus, 2 to cancel, it's minus x. Sine of minus x. Divided by minus cos square a minus sin square a किसके बराबर है? Cos 2a मतलब cos 2x. You got it? क्या कैंसिल हो जाएगा कुछ? Cos and cos कैंसिल. अच्छा twice sin के साथ अंदर नेगेटिव है तो बाहर आ जाएगा. It's minus twice sin x. Clear? Divided by minus 1. है ना minus 1? So this total minus 1 cancel, it's twice sin. यही आंसर है. ये था लेफ्ट हैंड साइड और आंसर आ गया कुछ और, तो वो है राइट हैंड. नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21. बोलो क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इट्स cos 4x plus cos 3x plus cos 2x divided by sin 4x sin 3x sin 2x. हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए cot 3x. क्या चाहिए? Cot 3x. फिर ऊपर क्या? आइडेंटिटी हमने पढ़ी है cos a plus cos b. हमने ऐसा नहीं पढ़ा है cos a plus cos b plus cos c. वो भी एक आइडेंटिटी, लेकिन 11th में आपके यहाँ पे इतना ही है जो हमने पढ़ा cos a plus cos b. ठीक? cos a plus cos b. तो इसमें तीसरा भी इंक्लूड हो रहा है. हम पहले दो को अलग से लेते हैं. किस किस को अलग से लेंगे? अगर मैं लूं cos 4 और cos 3 को, ध्यान रखना, cos 4x plus cos 3x, जब एंगल्स को सम करोगे 4x plus 3x डिवाइड बाय 2, तो ये डेसिमल्स में आ जाएगा. 4 plus 3 is 7 by 2. ठीक है? तो हम इवन को अलग से लेते हैं, इवन नंबर्स को लेंगे. किस किस को? 4 और 2 को, क्योंकि 4 और 2 मिला के क्या बनेगा? 6. जब 4 और 2 का सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 बन जाएगा. ठीक है बेटा? तो हम यहां पे क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे ऐसे 4x cos 2x, ये रखो साइड में, डिवाइडेड बाय sin 4x sin 2x plus sin 3x. It is cos a plus cos b. What is cos a plus cos b? It is twice cos of their sum. Correct? Yes, sir. It's cos a plus cos b. It's twice cos of the sum of angles divided by 2. It's 4 plus 2 is 6. 6 by 2 is 3. And cos of their difference, 4x minus 2x is 2. 2 by 2 is x. And this is cos 3x. इतना समझ आया? Yes, sir. Divided by, यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, sin a plus sin b. It is twice, पहले sin है, sin of their sum, 3x. it's 3x. And cos of their difference, 4 minus 2 is 2. 2 by 2 is 1. So it's cos x plus sin 3x. कुछ कॉमन है न्यूमरेटर में? Cos 3x है ना? Cos 3x. What's remaining? It's twice cos of x plus 1. Then sin 3x is common. It is twice cos x plus 1. एक फैक्टर सेम है, तो बचा क्या? cos by sin. कल लिखते हैं cos 3x by sin 3x. वही है cot 3x और वही हमारा राइट हैंड साइड. मुश्किल है? आपको पता है cot of x plus y की आइडेंटिटी? cot of x plus y तो हमने पढ़ना था, लेकिन हमने वो पढ़ा नहीं था, अपने खुद करना है. जरा बोलो वो आइडेंटिटी. क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ने से पहले, क्वेश्चन नंबर 22 इसको पढ़ने से पहले कुछ और पढ़ेंगे पहले. ठीक है?
जरा बोलो cot of x plus y किसके बराबर है? Cot x, cot y. एक सेकंड, cot of x plus y is Cot x. cot x Cot y minus 1. cot y Minus 1. minus 1 Cot y plus cot x. Divided by cot y. divided by Cot y plus cot x. cot y plus cot x. ये है ना? तो एक बार दिया cot of x plus y, listen to me, cot of x plus y is cot x cot y minus 1 divided by cot y plus cot x. क्लियर? देखो मैं क्या कहता हूं, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेंगे, इसमें हम डायरेक्टली कुछ और करेंगे, एक जादू करेंगे। देखो क्या जादू, cot 3x लिया, cot 3x तो बुझ में एक्स में कुछ जाएगा, cot 3x के बदले cot 2x plus 1, cot 2x plus x, ये बना। Yes sir. 3x को ब्रेक किया, 2x plus x। क्लियर? तो इसमें क्या करेंगे, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। कौन सी? x plus y की आइडेंटिटी, cot of x plus y, x is 2x, y is x, cot x plus y is what? Cot x मतलब cot 2x, है ना? Cot x plus y is cot x मतलब फर्स्ट वन, एंड cot y मतलब cot x minus 1 divided by cot y means second plus cot x means first। नहीं समझे? Yes sir. अच्छे से आई समझ? Yes sir. अब ये दो इनके साथ मल्टीपल करेंगे, cot 3x के साथ मल्टीपल करेंगे cot x और cot 2x को, और फिर राइट साइड में है cot 2x cot x minus 1। ठीक? Yes sir. It's cot 3x into cot x, cot 4 है? ఈరోజు తప్పదు, cot 3x into cot x plus cot 3x into cot 2x, ठीक, is equal to cot 2x cot x minus 1। ये माइनस 1 को इधर शिफ्ट करो, 1 is equal, बाकी सारा राइट साइड शिफ्ट करो। ठीक है, तो बाकी सारा राइट साइड शिफ्ट करेंगे, वहां पे ऑलरेडी क्या मौजूद है? cot 2x cot x, ये शिफ्ट करो तो माइनस cot 3x cot x, ये शिफ्ट करो माइनस cot 3x एंड cot 2x, और इट कैन बी रिप्लेस। ये सारा कुछ आप लिखो लेफ्ट हैंड साइड, है ना? हम शिफ्ट नहीं कर रहे, बस इंटरचेंज कर रहे हैं चीजों को। 1 को उस साइड लिखो, इसको इस साइड पे लिखो। अब लिखो इसको यहां से, बोलो क्या है? Cot 2x. cot 2x cot x cot x minus cot y minus cot 3x cot x cot x Minus cot 3x. minus cot 3x cot 2x cot 2x cos is equal to 1। तो यही ऐसा ही हमारा क्वेश्चन है। yes sir ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा रीअरेंज अगर कुछ करना है वो बोलो क्या क्या, जरा बोलो क्या है? Minus cot x is cot 3x is हाँ? cot x पहले cot x is cot of तो हमारा क्वेश्चन ऐसे, क्वेश्चन था ऐसे, और हमने प्रूव ही कर दिया। ना लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिया अलग से, ना राइट हैंड साइड, हमने डायरेक्टली क्वेश्चन को ऐसे प्रूव कर दिया। अब देखो क्या है, पहले cot x, फिर cot 2x cot 2x, minus cot 2x फिर है ये वाली टर्म, ये वाली टर्म है cot 2x एंड cot 3x, फिर है ये माइनस cot 3x एंड cot x, और ये किसके बराबर है? यही हमें प्रूव करना है। समझ आया? yes sir देखो अगर आप ये करते, ये आप लेते लेफ्ट हैंड साइड और आपने इसको किसके बराबर दिखाना था, तो आपने देखो क्या क्या इस्तेमाल करना है। cot 2x की आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए थी, और आपको याद होनी चाहिए थी cot 3x की आइडेंटिटी, उनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना था, फिर जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था, फिर जाके सिंपलीफाई करना था, और फिर आपको आंसर मिलता। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को आप थोड़ा डिफरेंट अंदाज से हमने किया, और इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही याद रखोगे। इसको याद रखना है, पहले जब भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको ये आइडिया आना चाहिए कि मुझे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। बस एक आइडेंटिटी, शुरुआत आपको याद रहनी चाहिए कि मुझे शुरुआत कहां से करना है। देखो हमने जो है यहां पे हमने पढ़ा है cot of x plus y cot of x minus y, cot 2x भी आप खुद से पढ़ सकते हो। कैसे cot 2x पढ़ोगे? cot x plus x
है ना, cot 2x is cot of x plus cot of x, that is cot square x minus 1 divided by cot twice cot x. असल तो ये था याद कि हम शुरुआत कहां से करेंगे। जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या जब भी आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करोगे, आप एक चीज पे ध्यान रखना कि हम इस क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करेंगे। अगर आपको ये याद रहा शुरुआत कहां से करेंगे, देन इट्स इजी। आसान है या नहीं है? तो इसमें कोई आइडेंटिटी हमने फिर इस्तेमाल नहीं की, बस एक बार आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी, फिर जाके सिर्फ सिंपलीफाई कर दिया एंड वी गेट द आंसर। यू गॉट माय पॉइंट? बस टाइम हो गया।